What a magical journey it has been for the Shaheens to get to this place, the semi-finals. Assalamu alaikum, hello and welcome to another edition of the Pavilion. मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports. And it's another big day at the ICC Men's T20 World Cup as we take you to the second semi-finals. कल पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड ने जीता इंग्लैंड के खिलाफ. नजर डालते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर कि कल की क्या थी दास्तान. इंग्लैंड ने पहले की बैटिंग 166, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर अपने 20 ओवरों के अंदर. बहुत अच्छी बॉलिंग न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तरफ से, बट मोइन अली की एक बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स थी. मलान ने भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया. जवाब में न्यूजीलैंड ने 19 ओवरों में 167 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. मिचेल देयर प्लेइंग एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स ऑफ 72 रन्स. कॉनवे contributing with 46, and it was Neesham's 27 that really changed the tide in favor of the New Zealand. Livingston, Vokes, Rashid all in the wickets, but it was New Zealand's evening, and New Zealand qualify straight into the T20 World Cup 2021 finals, the first time that they've been able to do that. With that, Pakistan clashes with Australia. आज का बड़ा मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं बराह रास्त ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. दोनों टीमों के टाकरे के बारे में बात करेंगे, वेन्यू के बारे में बात करेंगे और बहुत सी बातें करेंगे आपके साथ. पेविलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, the unquestionable sultan of swing, the miracle man, one of the finest all-rounders the game of cricket has been gifted with, Wasim Akram. Assalamu alaikum. Crushing the spirits of batsmen around the world with his swinging, toe-crushing Yorkers, Waqar Younis. Pakistan's most successful test captain, always cool, always calm, and with a very weird sense of humor, Mr. Misbah-ul Haq. Assalamu alaikum. The young, the dashing and very impressive Wahab Riaz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, gentlemen, and welcome. It is another big day. हेड टू हेड जरा देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मुकाबलों का सूरत हाल किस तरीके से है. और जब आप ये देखेंगे हेड टू हेड ओवरऑल के अंदर, तो पाकिस्तान ने 13 मैचेस जीते हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैचेस. एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया था. यहाँ पर तो बहुत अच्छी सूरत हाल लग रही है. वर्ल्ड कप्स के अंदर, नॉकआउट स्टेजेस के अंदर थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट है, बट ये देख लेते हैं T20 वर्ल्ड कप्स का अगर आप ले आए तो ये जनाब T20 वर्ल्ड कप्स के मुकाबले हैं और यहाँ पे मामला बराबर है. इट्स 3-3. दिस इज ए राइवलरी that everybody has been talking about. Wasim, you played against Australia. You have a lot of memories. You're actually still playing a lifelong innings against Australia at home, but a lot of memories there. Yeah, Australia, first of all, I would like to wish Pakistan team all the best. और मैं ये भी उनको कहना चाहूँगा कि whatever happens today is part of the game. We understand that. We are ex-players. We understand that. I think the way you conducted yourself इस T20 में, जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेली है ऑन द फील्ड और जो आपका एटीट्यूड था ऑफ द फील्ड, यू won our hearts anyway. So all the best guys. And coming back to Australia, top sides in the world in general cricket wise from last 30-40 years, इनको हराना काफ़ी मुश्किल होता है because knockout stages में हमारा इनके खिलाफ record, I suppose when you play cricket, when you're in the semi-final, as a player you don't think कि आज से 2 साल पहले क्या हुआ था. You think what I'm going to do today against the Australians. But yeah, memories अच्छी भी हैं, memories sad भी हैं. 99 वर्ल्ड कप वन साइडेड जीत गए मैच. हमारी इतनी अच्छी टीम थी, but again end of the day they played better cricket. But I think today rivalries इनके साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब मैं यंग था, यहाँ 88 की बात है, 89 की, मेरा गोल था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करूँ. बिकॉज वंस यू परफॉर्म अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया either anywhere in the world and especially in Australia, आपका cricketing world में नाम यहाँ से यहाँ आ जाता है as a player, because they're considered one of the best sides in the world. Their cricket is tough, they are psychologically very strong, they're mentally very tough as well. So again, it's a knockout, but the way Pakistan team is playing their cricket in this tournament, I hope they relax. They just go out and enjoy instead of thinking we'll be playing the Australians, जो पुराने record हैं. So that's my message to them. That's really nice. Waqar, you are an overseas Pakistani. You reside in Australia. Spend a lot of time in Australia, and you have now, your children have roots in Australia and all. And you've had a great rivalry against Australia. Some great memories against Australia as well.
Indeed. Assalamu alaikum, everyone. I want to echo what Wasim bhai just said. All the best, Pakistan. It's a big day, and we all rooting for you guys. जाके आज उसी तरह खेलो जो जैसे पहला मैच खेले थे, जैसे इंडिया के अगेंस्ट खेले थे. You guys were superb throughout this tournament so far. अभी तक मैच नहीं आ रहे, माशाल्लाह. Just keep going. Just simply keep going. Australia is just treat them as another team. ठीक है, जो भी पास में हुआ that's gone. आपकी एक रिदम बना हुआ है, आपका एक डिसिप्लिन बना हुआ है. बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग. I mean, I can't find a fault in Pakistan team at the moment. So all the best. बाकी जहाँ तक रही against Australia, मेरा first major tour was Australia. Played against in Sharjah first and then toured India also, but major test tour was Australia. And really enjoyed the place, and I'm settled in there right now. And cricket wise मेरी जो सबसे memory top memory है जो मैं कल भी कह रहा था ना कि I love my batting. I always do. So I won a couple of games, one against India, one against Australia with the bat. Me and Saklan दोनों ने हमने एक partnership बड़ी अच्छी छोटी-छोटी over the weekend 2 matches थे. That really comes into my mind, and then of course winning as a captain over there in Australia as Carlton United series. 3 one-day के लिए गए थे, बड़ी दूर गए थे, लेकिन we managed to win that one. Yeah, you did indeed. Misbah, you faced a lot of Australian fire attacks over the years. Lots of memories there. बहुत. सबसे पहले तो गुड लक पाकिस्तान टीम को. आई थिंक पूरी कौम को सेमीफाइनल में, एंड देन ऑब्वियसली कमिंग बैक टू द राइवलरी. जो मुझे याद है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैच 2007 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग वांडरर्स. हमारे लिए बड़ा मैच था. हमने क्वालिफाई करना था नेक्स्ट राउंड के लिए. सो वी वर चेजिंग 165 और 167, एंड आई थिंक द की वाज एट दैट टाइम कि शुएब मलिक और मेरी पार्टनरशिप हुई बड़ी ज़बरदस्त. मैं मैन ऑफ द मैच भी हुआ उस मैच में. सो दैट वाज द फर्स्ट फीलिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. उससे भी पहले आई थिंक आई परफॉर्म्ड इन केनिया, एक 50 की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. शेन वॉर्न था, मैगरा था, गिलेस्पी, Bradley. That was that's quite an attack. Strong. That's quite a bowling Australian attack. Which year was that? That was 2002. Okay. Yeah. So Australia is always a let's tough not side. forget 17 runs in the last over. Mike Hussey. Yeah. That's a memory as well. World Cups में 2007 फिर 2010 में 2 मैच we lost against Australia, जिसमें सेमीफाइनल था. फिर 2011 50 और वर्ल्ड कप in Colombo you won against them. That was a massive game. उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया की टीम one of the favorites थी कोलंबो में. वकार भाई उस टाइम कोच थे. And then obviously in 2015 quarter final. That was a good game. मेरा आखिरी वनडे मैच भी था from पाकिस्तान. But overall जो उसकी memories, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम वो मैच खेली, जिस तरीके से वहाब ने बॉलिंग की, जिस तरीके से हमने उस मैच को, जिस इंटेंसिटी थी उस मैच की, एक वन स्टेज ऑस्ट्रेलिया के हम बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा था कि वी आर देयर. सो गुड मेमोरीज. Yeah, good memories and great rivalry. Wahab, you bowled to a lot. आपने कुछ माहौल को टेंस नहीं कर दिया? अजीब सा ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई. अच्छा, आप लोग मेमोरी से या शुरू तो में? मुझे लग रहा है कोई नर्वस है सब लोग या टेंस है. No, we're at the semi-final day. It's Pakistan semi-final. आप क्या कहना चाहते हैं? वो अपना तबला घर भूला है. ये मैं अपना तबला घर भूला है और आप अपना हारमोनियम. तो वहाब आप पे आ जाते हैं जरा. आपने जो मौजूदा बॉलर्स हैं इनके खिलाफ, बैट्समैन जो इनके खिलाफ भी बड़ी बॉलिंग की हुई है आपने, and you've done really well for yourself against them. You've bowled against a lot of these people who are now playing today's game. You have a lot of memories as well. यार सबसे पहले यार आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जिस तरीके से आप लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं, खेले हैं. सीरियसली एज अ प्लेयर आई मिस दैट. और इतना अच्छा लग रहा है कि when we see all those visuals जिसमें आप लोग एक दूसरे को चेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, you know, you are the strength of each another. Seriously, it's hard to speak but all the very best. और एक बात आप लोगों को बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आप लोगों ने भी खेला, हमने भी खेला. ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसको आप अगर शुरू से मैच में डिक्टेट करेंगे, ट्रस्ट मी द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर. दैट्स हाउ दे हैव बीन. और इंशाल्लाह वी आर ऑल हियर सपोर्टिंग एंड प्रेइंग फॉर यू गाइस. ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू बी ऑनेस्ट, बट
जो राइवलरी है, मैं 2 मैचेस उनके साथ खेला हूँ वर्ल्ड कप स्टेजेस में। एक जिसका मिसबा भाई ने जिक्र किया 2015 का, और एक 2016 में हमने T20 खेला था उनके अगेंस्ट मोहाली में। अनफॉर्चुनेटली हम वो दोनों मैचेस नहीं जीत सके, लेकिन 2011 में भी खेला, 2011 में भी खेला, मैं नहीं, ये 2011 में भी खेला था, हाँ वो हम जीत गए थे। बट आप स्क्रीन के ऊपर लगाइएगा, ये वर्ल्ड कप के मैचेस के ग्राफिक्स हैं पाकिस्तान पर मुकाबला। Here we go, it's on your screen right there. Ouch, knockout stages. This is how it has been. That's the knockout stages. Don't read the first line. Don't read that result one. Result one? हाँ, वो के बाद मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, स्क्रीन पे तो नजर आ रहा है वो जैसे भी। I tell you, इनके अगेंस्ट खेलने का मजा बड़ा आता है। One of the most competitive team, but to be very honest, they come under pressure really quickly. अगर आप उनके ऊपर प्रेशर में उनको लेकर आए, जैसा मुझे याद है हम लोग अंडर प्रेशर थे 2015 के वर्ल्ड कप में। मिसबा भाई और हमारी मीटिंग हुई थी जब वकार भाई वगैरह की, तो मैंने उन्हें कहा था कि क्योंकि इन लोगों को बाउंसर्स खेलना बहुत पसंद है, सो आई विल कीप बॉलिंग दोज बाउंसर्स, और 2 बाउंसर्स अलाउ थे उस मैच में। तो आई हैड अ फ्री गो फ्रॉम द कैप्टन के ठीक है तुम्हारा जो दिल करता है करो, और फिर वो एक अर्ली स्टार्ट उनका अच्छा हुआ और आया। मैंने मिसबा भाई को कहा मिसबा भाई बाउंसर करूँगा, तो उन्होंने कहा ठीक है करो, एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ एंड इट स्टार्टेड टू पे ऑफ, एंड वी ऑलरेडी ऑलमोस्ट वी वर देयर टू विन दैट मैच, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट। और इसी तरह 2016 में भी हमने शुरू में उनके जल्दी आउट किए, विकेटें ली, लेकिन एंड में हमने वो दे स्कोर्ड रन्स और हम वो जीत नहीं सके। सो इट्स अ टफ टीम टू प्ले अगेंस्ट, लेकिन it's a beatable team for sure. So what sort of mindset the boys should have? I mean, last night उनका क्या रूटीन होगी? वसीम भाई, आई थिंक देखिए जिस तरह हमने इंडिया के अगेंस्ट जिंक्स को ब्रेक किया, वी वर लुकिंग अ डिफरेंट टीम। आई थिंक एवरीबडी वाज डूइंग जो उसको आता था, और हर एक अपनी स्ट्रेंथ पे वो चीज़ कर रहा था, एंड दे वर फॉलोइंग द प्लान। वी वर सीइंग कि अगर एक स्लोअर वन कर रहा है, देयर वाज मैसेज सेंट, सारे स्लोअर वंस कर रहे हैं। So I think the best thing is to do what you do the best and do what team requires. And like you played semi-final against Australia, knockout game. So night before, players आजकल के दौर में, what do they go through mentally? वसीम भाई बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं। Okay. You think a lot of things. When you come up to Warner को क्या बॉलिंग करूँगा, फिंच को क्या बॉलिंग करूँगा, और विजुलाइज करते हैं, मैं विजुलाइज करता हूँ। Sure. और हर प्लेयर विजुलाइज करता है। मे बी कोई शीशे के सामने खड़े होकर शॉट्स खेल रहा होगा बैट के साथ, वो ये सोच रहा होगा मैं कमिंस को ऐसे मारूं, स्टार्क को ऐसे मारूं। हमने 2019 का भी जो वर्ल्ड कप खेला है, हमारे जल्दी आउट हो गए हम लोग, लेकिन हम लोगों ने फिर उन्हें पकड़ लिया। सो बेसिकली एज अ प्लेयर आपका माइंड यही होना चाहिए कि व्हाट यू कैन डू द बेस्ट, हाउ यू कैन परफॉर्म, और दैट थिंग्स, दैट कॉन्फिडेंस टेक यू टू द गेम। ऑलराइट, विजुअलाइजेशन। एक दिन पहले दोस्तों आप देख रहे हैं द पवेलियन ऑन स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। इट इज सेमीफाइनल नंबर 2, Pakistan versus Australia. We're getting closer to the action. We'll be right back after this break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. It's a big day. Pakistan versus Australia, semi-final number 2. With me in the Pavilion, Pakistani legends and stars. We've got Waqar, Yunus, Wasim Akram, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. और इस वक्त हमारे पास कुछ comments हैं from the general public. Let's listen in. मैं पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहती हूँ, और पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है और जो कैप्टनसी रही है बाबर आजम की, और आसिफ अली ने भी बहुत अच्छा खेला है। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी हम लोग जीतेंगे। थैंक यू। पूरी टीम बहुत अच्छा खेली है, बहुत एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इस दफ़ा की टीम जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी माशाल्लाह से इन्होंने इनका कोऑर्डिनेशन है, ये अच्छा एक दूसरे के साथ है, अच्छा बर्ताव है इनका, अच्छा चल रहा है सब कुछ माशाल्लाह से। इंशाल्लाह हम लोग फाइनल भी जीत कर आएंगे। वी विल। थैंक यू। हमें पाकिस्तानी टीम से पूरी उम्मीद है आप ये वर्ल्ड कप लेकर ही आएंगे। बाबर आजम आप बहुत अच्छा खेले, और शाहीन अफरीदी, हमें आपसे पूरी उम्मीद है। पाकिस्तान की टीम से हमें बहुत उम्मीद है कि वो अच्छा खेल कर आएंगी, गेम जीत कर आएंगी, और मैं चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Right, Pakistan Zindabad. The fans super excited about the day. Let's talk about this venue, Wasim. The venue is really very favorable to Pakistan because Pakistan लगातार अपने मैचेस 16 तकरीबन मैचेस यहाँ पर जीता हुआ है, तकरीबन, क्योंकि मेरे सामने स्टैट नहीं था इसलिए तकरीबन 16 ही है, चले सही लग गया। 16 मैचेस अपने यहाँ पर जीता हुआ है, और अभी तक सुपर 12 में यहाँ पे जितने मैचेस हुए हैं, टीम दैट इज वन द टॉस, 10 मैचेस हैव बीन वन बाय द टीम विनिंग द टॉस।
That Yeah. makes this a toss-centric venue. Yeah, a little bit. I suppose जो आपने बताया कि एक टीम सिर्फ पहले इस वर्ल्ड कप में बैटिंग करके जीती है, and that was New Zealand against Scotland. So yes, toss is little crucial. I know it's not किसी के कंट्रोल में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है टॉस कौन जीता है, बट टीमों को स्पेशली पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि टॉस हार भी सकते हैं. अगर हार गए तो हमने बैटिंग कैसे करनी है. कमिंग बैक टू द ग्राउंड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज इन वर्ल्ड क्रिकेट. ड्रेसिंग रूम बड़े खूबसूरत हैं, बड़े बड़े हैं, प्लान्ड हैं. फिर यू नो द पिचेस आर नाइस, द ग्राउंड इज़ नाइस, द रिंग ऑफ फायर. और पाकिस्तानी के लिए ये तो होम ग्राउंड रही है ना 10-11 साल. मिसबा, यू प्लेड ऑलमोस्ट योर क्रिकेट देयर एंड वहाब एज वेल. So generally the comfortable, the facilities are very good. The pitch, we've seen that it's not a high scoring pitch. Average score is World Cup mein, I think it's about 122 on this particular pitch. But generally it's a good venue, great venue in fact. Interesting, Misbah, that for UAE not being a test playing nation and cricket not being a primary sport for them, they've become quite a sensational location for cricket, international cricket. और जिस खूबसूरती के साथ ये दुबई रिंग ऑफ फायर बनाया है, अंदर हमने भी देखा हुआ ड्रेसिंग रूम्स वगैरह आपने बताया बहुत अच्छे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. हाउ कम ये दूसरे जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है हमारे यहाँ वैसे क्यों नहीं बनते स्टेडियम? आई थिंक शायद एक आईसीसी का वहाँ पे हेड ऑफिस होना ये भी एक रीज़न. और दूसरा पाकिस्तान ने बहुत क्रिकेट खेली है वहाँ पे. ऑब्वियसली क्रेडिट गोज़ टू देम. बहुत ज़बरदस्त स्टेडियम है, मज़ा आता है खेलते हुए भी. इवन मैच देखते हुए मैंने खुद वहाँ पे T20 का मैच देखा पाकिस्तान का. सो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्राउंड्स. यू इंजॉय वॉचिंग क्रिकेट, यू इंजॉय प्लेइंग देयर. और वेन्यू पे जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान ने अभी तक डिफेंड नहीं किया वहाँ पे. हमने सारे मैचेस चेज़ किए हैं इस वर्ल्ड कप में. पाकिस्तान ने डिफेंड किया हुआ है यहाँ पे एंड पाकिस्तान वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. हम यूएई में सारी जितनी भी ग्राउंडों में हम खेले हैं, हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेले हैं. और मेरे ख्याल में यही बॉलिंग अटैक था मोर और लेस. शायद एक आमिर की जगह शाहीन है. 150 रन्स पाकिस्तान ने डिफेंड किए हुए. सो आई थिंक फॉर पाकिस्तान अगेन वो एवरेज स्कोर हमने देखना है कि हम अगर टॉस हारते भी हैं और पहले बैटिंग भी आती है, आई थिंक हमें इवन विद द ड्यू डिफेंड किया हुआ पाकिस्तान ने. बिल्कुल पाकिस्तान ने किया, क्योंकि ड्यू थोड़ी बहुत तो जब भी हम खेले हैं उस वक्त ड्यू तो थोड़ी बहुत रहती ही है. ड्यू फैक्टर उस टाइम भी होता था. नाइट मैचेस खेले हैं, डे मैचेस नहीं खेले. सो आई थिंक वही जो सब बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमें उसको देखना है कि 10-15 रन हमने एक्स्ट्रा कोशिश करनी है करने की. बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा हमें उससे मतलब डरने की ज़रूरत है. अगर ऐसा सिनेरियो आ भी जाता है, जस्ट फोकस कि हमने उसको कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे हमने पहले डिफेंड किया हुआ है, फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. उससे पहले ही घबरा के कुछ उल्टा सीधा ना हो. आप अपने प्लान्स पे रहें. होपफुली इंशाल्लाह विल डू बेटर. Yep, Waqar, looks like a favorable venue for Pakistan. Clearly, that's what the stats say. ऐसा होता है मेंटली कि प्लेयर्स को कोई ग्राउंड जो है वो दिल को भा जाता है, कहते हैं इधर तो हमने परफॉर्म करना ही करना है. डेफिनेटली. आई मीन यू नो पाकिस्तानी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है. और दूसरा जो बड़ी अच्छी बात की मिसबा ने कि अगर आप वसीम भाई ने भी की कि अगर आप टॉस हारते हैं तो सर नहीं गिरने चाहिए. क्योंकि मुझे मालूम है इन लड़कों का कि ये सब की नज़रें होंगी, चोरी चोरी देख रहे होंगे कि टॉस क्या हुआ, टॉस क्या हुआ. एंड इट कैन प्ले ऑन यू. दैट इज़ एडेड प्रेशर है ये आपके ऊपर. डोंट वरी अबाउट द टॉस. Yeah, you know, because it's just go out and enjoy the game. You know, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में शायद नहीं किया. यहाँ पे पहले मैचेस 16 मैचेस खेले हुए हैं. यहाँ पे पाकिस्तान हैव डन रियली वेल ऑन दीज ग्राउंड्स. सो जस्ट गो आउट देयर. आप लोग फॉर्म में हो. Don't even think about the toss. कि ये टॉस में क्या होना है. Right on. Misbah, let's get cracking on the Pakistani batting lineup now. बहुत सारे सवालात हमारे पास सोशल मीडिया पे भी आते रहे. And let's start with you and Wasim. Let's start talking about the Pakistani batting advantage and areas of concern. एक पहली बात तो ये बताते चलें कि वो कल से रिजवान की और शुएब मलिक के बीमार होने की बातों के ऊपर बहुत सारे लोग जो थे वो परेशान हुए थे. अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दोनों के दोनों जो हैं वो फिट हैं, खेलने के लिए तैयार हैं. So we wish them all the best. How does the Pakistani batting go about their business if they have to set up a target? लेकिन मेरे ख्याल में सिंपल रखना चाहिए इनको. द वे दे आर बैटिंग, कम्प्लीमेंट करते हैं दोनों एक दूसरे को.
थोड़ा सा इस मैच में ये ज़रूर है कि जो प्रीवियसली हम देख रहे हैं कि पावर प्लेज में उस तरीके से पाकिस्तान कैश नहीं कर रहा जिस तरीके से बाकी टीमें कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किया 2-3 मैच। बॉलिंग के खिलाफ जो दोनों मिचेल स्टार्क है और हेजलवुड है और तीसरा कमिंस है, उसके खिलाफ किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए? बिकॉज अगर ऊपर से 2 विकेटें गिर गई तो प्रेशर पड़ सकता है। देखिए पाकिस्तान के जो दोनों बैट्समैन हैं वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं बट दे आर वेरी गुड। बाबर को सूट करेगी ये बॉलिंग, ज़्यादा पेस वाले बॉलर हैं जैसे स्टार्क हैं, वो लाजमी इनको पिच अप करके कोशिश करेंगे, यॉर्कर्स अर्ली ऑन लेग बिफोर करने की कोशिश करेंगे और जहाँ पे वो ये चांस लेंगे ऑलवेज अपॉर्चुनिटी कम्स फॉर दीज बैटर्स। स्पेशली रिजवान की अगर आप एवरेज देखें, रिजवान की कोई 80 प्लस की एवरेज है अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स। सो ही इज़ स्कोरिंग एट आई मीन उसकी जो एवरेज है ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट अगेंस्ट द लेफ्ट आर्मर्स। सो आप अगर देखेंगे मिचेल स्टार्क आएंगे तो आई थिंक लेग साइड पे स्ट्रॉन्ग है रिजवान, तो उसको ये एडवांटेज हो सकता है। बाबर ऑन द अदर हैंड ही इज़ अ क्लास प्लेयर और नॉर्मली ही प्लेज कन्वेंशनल शॉट्स। आप देखेंगे कि कहीं पे भी इस पूरी बैटिंग में ऐसा नहीं लगेगा कि कोई स्लॉग किया उसने, उसे जस्ट टाइम किया है शॉट, वर्किंग इन द गैप्स, ये स्वीप भी मारी है तो वो भी नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट बीच में खेली है और उस फील्ड को बेसिकली वो यूज़ करता है, पेस ऑफ द बॉलर यूज़ करता है in his favor. Wasim, the only one time that Rizwan has been bowled out by a left-hand fast bowler was Mitchell Starc in a T20 in 2019. But other than that, he's got a fantastic record against lefties. या उसका record lefties के अलावा in general I think उसके सिर्फ 34 रन रह गए हैं कैलेंडर ईयर में 1000 रन करने के लिए। अगर ये कर जाता है तो दुनिया का पहला बैट्समैन होगा जो कैलेंडर ईयर में 1000 T20 के रन्स करेगा। सो दैट शोज हिज कंसिस्टेंसी। हिज एवरेज इज अबाउट 87.81 तकरीबन and that's year 2021. That's incredible. 966 runs. I agree with Misbah. You see off the new ball और so far इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है वो यही रही है, विकेट्स इन हैंड। और हम वो टीम हैं, आई थिंक टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है जिसने आखिरी 10 ओवरों में 2 दफ़ा 110 से ज़्यादा स्कोर किया है, बिकॉज वी हैड विकेट्स इन हैंड। कल वाले सेमीफाइनल के अंदर भी इंग्लैंड ने 99 रन किए थे अपने आखिरी 10 ओवरों में, फ्रॉम 11 से 20 तक। उसके रिस्पांस में न्यूजीलैंड मैनेज्ड 109 रन्स इन देयर लास्ट 10 ओवर्स ऑफ द इनिंग्स। सो इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कि ये थ्रू आउट यही स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि ऊपर से इतना वो नहीं मिल रहा जो ब्लिस्टरिंग स्टार्ट हम सोच रहे थे कि इट्स बिन अ वेरी रेयर ओकेजन। विल दैट प्ले अप फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड? आई थिंक जो भी टीम बैटिंग पहले करेगी ना, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जो मिसबा ने बात की है ना कि वो जो एक्स्ट्रा 15-20 रन ये कहीं ना कहीं खुड़क रहे होंगे कि मुझे ज़्यादा करने हैं अगर मैंने वर्ल्ड कप को आगे फाइनल में जाना है। क्योंकि सेकंड टाइम जब आपके पास टारगेट सामने होता है तो आपको पता होता है कि मैंने किस तरह से थोड़ा स्लो भी खेल सकते हैं। ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में ट्रेंड जो देखा है, एज यू सेड कि जी पिछले जो 10 ओवर हैं, यू नो टीम्स आर कमिंग हार्ड एट द बॉलर्स। बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उतना शायद रुकता नहीं है, बॉल बल्ले पे थोड़ा बेहतर आता है। शाम के मैचों में थोड़ी सी सिचुएशन या पिचेस थोड़ी सी ग्रीसी हो जाती हैं, बल्ले पे बेहतर आता है। सो आई फील के यू नो अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है तो प्ले लाइक द वे यू प्लेड अगेंस्ट इंडिया, वेरी सिंपल, बी एग्रेसिव, यू नो, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो इट्स फायर अगेंस्ट फायर। अगर आप ये सिट बैक नहीं कर सकते कि जी अच्छा yes you be disciplined at times, especially जब bowling कर रहे हो, let them make mistake because they're gonna come hard at you, so allow them to do that। लेकिन जब आप बैटिंग कर रहे हो तो play like the way you played against it, be ready to take risk लेंगे तो आपको फतह मिलेगी। So but that is not the strategy that has been। ये जरा हम बैटिंग रन रेट देख लेते हैं 11 से 20वें ओवर तक पूरे टूर्नामेंट में टीमों का, एंड पाकिस्तान इज राइट ऑन टॉप। बिल्कुल, वो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, द ओनली रीजन दे आर टॉप ऑफ द लैडर इज बिकॉज देयर प्लान इज वर्किंग विकेट्स इन हैंड्स। अगर आपकी विकेटें 4 खुदा ना खास्ता किसी भी टीम की गिर जाती हैं पहले 10 ओवरों में तो रन रेट आपका ये नहीं रहेगा, रन रेट आपका नीचे आएगा, जो हमने वेस्ट इंडीज़ का देखा, बांग्लादेश का देखा, इवन ऑस्ट्रेलिया इज 8.39, अबाउट थर्ड लास्ट फ्रॉम दिस टेबल। लेकिन वसीम भाई इनकी जो बॉलिंग है, they've got a very good bowling lineup। ऐसा नहीं है कि ये यू नो पाकिस्तान के जो ड्रॉबैक, आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन जो ड्रॉबैक थोड़ा सा पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान अपने आखिरी जो 2 मैच खेला है या जो 3 मैच खेला है वो अगेंस्ट
काइंड ऑफ वीकर ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल के आ रहे हैं, associate ठीक है ना? teams, बिल्कुल तो ठीक है। वो वन कैन से ओके फेयर इनफ, यू ऑल इन गुड फॉर्म, लेकिन कैन दे डिलीवर दिस अगेंस्ट कमिंस एंड हेजलवुड्स एंड स्टार्क ये एंड मेरा ऑल? एक सवाल है, उसको फिर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। जी। क्या हम ये स्ट्रेटजी इसलिए डिप्लॉय कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकली हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो अचानक नर्वस हो जाता है और अंडर प्रेशर आ जाता है अगर ऊपर से विकेटें गिर जाएं? क्या हम इसलिए ऊपर प्रिजर्व कर रहे हैं विकेटें? 10 ओवरों में यार प्रिजर्व करके रखो, कम रन भी बने तो खैर है, बाद में मिडिल ऑर्डर खुल जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें मोस्टली क्योंकि हम चेस पे खेले हैं, टारगेट हमारे सामने था कि कितने रन हमने करने हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली खेलें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बैटिंग, जब आप पहले भी कर रहे हैं या बाद में, कि थोड़ा आपने यू हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस आल्सो। अगर आपको बॉल बल्ले में नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि इट्स डिफ़िकल्ट, तो ज़बरदस्ती करते हुए क्या होगा कि आप आउट होंगे, विकेटें गिरेंगी तो और ज़्यादा आप फंसते जाएंगे। आई थिंक दैट्स गुड कि समटाइम्स द बॉल इज़ नॉट कमिंग ऑन द बैट, आपको लग रहा है मुश्किल है, तो वो अगले के लिए भी मुश्किल होगा। दे जस्ट टेक इट डीप, और उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आखिरी 10 ओवरों में या 5 ओवरों में यू हैव मोर विकेट्स इन हैंड और आप उसको डैमेज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास भी अगर आप देखें तो मिचेल स्टार्क ऐसे बॉलर हैं जो डेथ में आके अच्छी बॉलिंग, नो डाउट कि हेजलवुड भी रिसेंटली कर रहे हैं, बट मुझे लगता है इन द मिडल स्टिल डैमेज कर सकती है पाकिस्तान टीम इनकी बॉलिंग। ज़ैम्पा इज बॉलिंग वेल, ज़ैम्पा इज बॉलिंग वेल, बट स्टिल आई फील कि जैसे रिजवान भी वहाँ पे खेला है या बाबर जैसे उसको खेला हुआ पाकिस्तानी मलिक है, ये बाकी टीमों के खिलाफ ठीक है उससे अच्छी बॉलिंग की है, बट पाकिस्तान स्टिल उसके अगेंस्ट अच्छे रन्स कर सकते हैं, उसको अटैक भी कर सकते हैं। मिडल ओवर्स कमिंस को भी कहीं ना कहीं मिडल के ओवर्स में ऊपर से अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है, जिससे 40 प्लस या 40, 42, 43, 45 रन अगर आप करते हैं, पार्टनरशिप लगती है, then you can always just damage them in the middle overs. All right, we'll get... Sorry. Sorry, I'm going to take us to a break. But when we come back, there's more discussion on the other side of the break. And we're going to be going to our screen over there. Waqar has a lot of things worked out for you. I'm going to show you right after this break. I never on said that screen. Yes, you I did. never You said- did a lot I'll of talk homework from today. हम आपको काम करवाएंगे आज. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion, watching A Sports and 10 Sports. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And it's another big day. It's semi-final number 2. आज पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी फैंस पूरी दुनिया में तैयार देखने के लिए ये मुकाबला। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी। मेरे साथ पेविलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड स्टार्स। I've got Wasim Akram, Waqar Younis, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. Waqar, before we went into the break, मैंने कहा कि let's talk about we've spoken about Pakistani batting. इसके ऊपर अभी हम और मजीद गुफ्तगू करते हैं. But why don't you take us through about how to deal with the top-heavy Australian batting? Look, they're both in good form. You know, वार्नर का इस टूर्नामेंट से पहले और इवन फिंच का भी इस टूर्नामेंट से पहले सूरत हाल ये थी कि दे बोथ वर स्ट्रगलिंग, लेकिन यू नो पीक्ड एट द राइट टाइम, दोनों फॉर्म में हैं, दोनों के बल्ले में बड़ा अच्छा गेंद किया। यस, कुछ बॉलर्स ने उनको फीड भी किया, जो मैंने देखा है, स्पेशली अगेंस्ट श्रीलंका, स्पेशली वार्नर ने जो अगेंस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट जिस तरीके से खेला ना, आई थॉट दैट वाज वेयर हिज जो मोमेंटम जो उसको मिला या जो उसको यू नो दैट्स वेयर ही स्टार्टेड फीलिंग इट, ऑल्दो ही मिस्ड आउट एक मैच में बीच में, लेकिन ही इज लुकिंग रियली रियली डेंजरस. तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू अ लिटिल बिट अबाउट हाउ ही गॉट दैट. जी जरूर, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. लेट्स गो. Especially against the spinners, you know, against Sri Lankan team. Watch this. You know, he plays both sides of the pitch and he starts from a very beginning. See that? सबसे अच्छी बात उसने जो अपनी की है कि he clears his front leg, जो कि पहले नहीं करता होता था. पहले ही इसकी बॉल उसकी बॉल की तरफ जाता. He clears his front leg and then he opens up both sides of the pitch. पहली दफ़ा मैंने इसको देखा है कि ये ऑन साइड पे ज़्यादा अटैक कर रहा है, ज़्यादा नॉर्मली ये ऑफ साइड पे खेलता है. See, he's dragging everything on the onside. Yeah. So this can be his downfall also because it's a risky shot. But जब form लगी हो, then you know everything is gold. Yeah. So he is no doubt, you know, a wonderful player. और विकी इसका लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ अर्ली ऑन कोई इतना अच्छा रैकेट नहीं है,
So Shaheen इस पे वसीम भाई, प्रेशर डाल इसने सकता है ना, बॉल I mean, पे। इसने वो मरों को मारा है। मैं ये कहूँगा कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इसने जब रन्स किए थे वो जेसन होल्डर नो पेस, वी कैन शो दैट आल्सो कि जिस तरीके से वो लेंथ से पुल कर रहा था, ये ऑफ स्टंप के बाहर से भी खींच रहा था। लेकिन उसमें जो अभी मैं द वन थिंग आई एम गोना शो यू, उसमें एक चीज़ याद रखना कि व्हाट ही डज इज, जब इसको गेंद थोड़ा सा तेज आता है, जब थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा आता है, ही लुक्स टू पोक एट इट, ही लुक्स टू प्ले टुवर्ड थर्ड मैन। स्पेशली लेट्स सी अगेंस्ट यू नो द वेस्ट इंडीज बॉलर्स, होल्डर को जिस तरीके से उसने हैंडल किया। लेट्स हैव अ लुक जरा एक दफा फिर। दिस इज होल्डर बॉलिंग। या That was chase. That was chase against. अभी देखिएगा, you will see that this holder. I mean, that's no pace. He almost dragged that ball from. But this is where the weakness is. ये out भी हुआ है इस पे, लेकिन because जेसन होल्डर की पेस उतनी नहीं है, even ब्रावो की भी उतनी पेस नहीं है, तो what he is doing is he is utilizing it. He's feeling comfortable. Even against the spinners, he is feeling very very comfortable. So जैसे ये विकी I आप guess दिखा देखा, रहे हैं। थोड़ा सा पेस आई है, थोड़ी सी पेस आई है, he have his problems. You know, अभी तो खैर मैच खत्म हो गया था, the way you know West Indies were out of the tournament and they were like just throwing the ball and let's play. विकी जी finish it. Then I'll ask you a question. लेकिन मैंने देखा है कि अगर जैसे 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 अपना शहीन बॉल करता है ना, इसको विकेट के अंदर से बॉल करना है। डोंट गो आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड डोंट गो टू, आई मीन विकेटों की लाइन जो हम बात करते हैं ना, जो मैट बिछता है, कभी जब आप डीआरएस देखते हो तो मैट होता है। So try to bowl from that off stump channel. मिडल से बाहर निकले, उसको मिडिल ऑफ से, मिडिल ऑफ से ना मिले, ताकि अगर ये खेले ना, बिकॉज ही लाइक्स टू फील बैट ऑन बॉल, ठीक है ना, अर्ली ऑन, बिकॉज ही इज वेरी हाइपर। तो क्या करता है कि जब इसको बॉल कई दफा पड़ के बाहर निकलता है ना, वहां से जो शहीन करता है, ब्रॉड ने किया था, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, आगे नहीं, आगे ही मैनेज रियली वेल, थोड़ा सा पीछे गिरता है ना, व्हाट ही डज इज ही पोक्स एट इट, फिर क्या करता है, एंड शहीन के लिए स्पेशली डोंट बी हेजिटेंट, डरना नहीं है इसको, इसके लिए अगर 2 स्लिपें भी चाहिए, पुट द स्लिप्स इन, गेट द विकेट्स। अगर आप विकेट्स लेंगे, दे विल बी अंडर। ये वार्नर का आउट है अगेंस्ट इंग्लैंड, इसको जरा देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। दिस इज वार्नर गेटिंग आउट। See that, that's what I'm saying. So although he's a right arm fast bowler, ठीक है ना, और इतना एंगल हुआ है, it's not swung, so he still sort of feels at it. इसका बल्ला हाथ इसके दूर हो जाते हैं। So if Shaheen can get that length right and ask him to, okay, hit me like that if you want to, but if you play like this, I'm gonna get you. Put 2 slips in. Come little bit hard at them early on. ये श्रीलंका के अगेंस्ट क्या आउट है वार्नर का, इसको भी देख लेते हैं एक दफा। Cleared his leg. ये भी मैच खत्म हो गया हुआ था उस टाइम में, because they were just they almost won. See this front leg? Yeah, clearing. Front leg opens up. इस फ्रंट लेग ओपन करने से इसको जो नुकसान होगा ना, वो ये नुकसान होगा कि इसके जो ऑफ साइड के शॉट है ना, जो ये मारता है, ये उतने पावरफुल नहीं होता। वकार भाई, ओवरऑल जो हमने भी जब हम गए थे वहाँ पे और एनालिसिस किया था इसका सारा, और जो ब्रॉड ने भी इसके साथ किया था, ओवर द विकेट राइट हैंड फास्ट बॉलर, फिर भी वहाँ पे ये आउट होता है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जब वहाँ उस एंगल से बॉल करता है, या राइट हैंड फास्ट बॉलर जब राउंड द विकेट जाता है, ही स्ट्रगल्स। Good you bring that up. Let's take a look at how he goes against the left hander. Here, ये एक विकेट है वार्नर की लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, आपकी स्क्रीन पे। Yeah, that was a slog sweep. That was just a slog. वो जो बात कर रहे हो ना, फ्रंट लेग क्लियर की है, दिस इज समथिंग न्यू आई एम सीइंग in Warner. It normally goes to the ball, go at the ball. इसका पैर जहाँ बॉल जाता है उसकी तरफ जाता है. Now what he's done just to open up this area on side, what he's doing is opening up a leg and then he's trying to sort of get that because of the slowness of the pitches. You have bowled against Warner many a times. How would you set him up for today's game? बिल्कुल जैसा बात कर रहे हैं कि इसको जो लेंथ है वो बहुत इसके लिए क्रूशल है। उसकी वजह ये है क्योंकि वार्नर के पास टाइम ज़्यादा है, हुक पुल अच्छा खेलता है, अगले बॉल पे अच्छा खेलता है। सो जिस स्पेसिफिक लेंथ की विकी भाई बात कर रहे हैं, ही डजंट लाइक एनी बॉलर टू पिच द बॉल विद इन द स्टम्प्स और थोड़ा सा आगे इसको, बिकॉज एट दैट वेरी मोमेंट ही हैज़ नो आइडिया हाउ टू गो अबाउट इट। अभी जिस तरह इन्होंने बात की कि थोड़ी सी टांग खोल रहा है, वो भी इससे टांग इसीलिए थोड़ी सी खोलना शुरू की क्योंकि पहले अगर ये बॉल की तरफ जाता था तो ही हैज़ नो आइडिया कि किधर खेलना है। और हमने देखा कि कई बार जितने भी बॉलर्स हैं स्पेशली जो राउंड द विकेट भी आके इसको एंगल इन कर रहे हैं टू बॉलिंग इन टू हिम, उन पे जो है उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया।
सो मेरा प्लान यही होता था कि आई विल कीप हिम विद इन द स्टंप्स एज मच और थोड़ा सा बॉल आगे करूं क्योंकि जिधर थोड़ा सा बॉल पीछे किया ही इज वेरी क्विक ऑन टू दैट कट एंड पुल शॉट। वहाब एक चीज़ थोड़ा सा वार्नर के हवाले से कि थर्ड मैन का फील्डर थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, वो कितना के इम्पोर्टेंट है नॉर्मली और थोड़ा तेज। वर्ल्ड कप में कहाँ पे ये कैच हुआ है? बिल्कुल थर्ड मैन पे वो थोड़ा सा आपको ये बता दें कि वो जब उसको बाउंसर शाउंसर करते हैं वो पेस यूज करता है जिसकी हमने बात की कि वो ऐसे खेलता है। अगर आपने स्लिप रखी हुई है यू शुड हैव द स्लिप अप फ्रंट फॉर हिम और प्लस आपका जो फील्डर है वो थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, वो एग्जैक्टली थर्ड मैन नहीं होनी चाहिए। You do all of this over there. Let's get some feel because इसके बाद we have to talk about Finch as well, how we want to set him up. So why don't you join? Waqar, why don't you join him there? Exactly फील्डर थर्ड मैन का वहाँ पे रखी जहाँ पे तूने राहत को नहीं रखा था और वो वहाँ था। नहीं तो कई दफा फील्डर आप लोगों के गुम भी तो जाते हैं। आपने यहाँ खड़ा किया होता है, आपने यहाँ खड़ा किया होता है, वो तीसरे मल्ले खड़ा होता दूसरे है। मल्ले चला जाता है, ऐसे ही है। ये आज Waqar, why don't you join? I'll join him. Pose some questions to our friend. थोड़ा साइड पे हो जाएगा वहाँ यू बैक इन आप थोड़ी सी We're going through Warner first, then we do Finch. आपने ये कवालों वाले कपड़े पहना के आप क्रिकेट की बात हम कर सभी आज एक ही जैसे में फंसे हुए हैं। मैं तो वेटर का काम भी कर सकता हूँ आज। लेट्स सी। उसको थोड़ा साइड। Right, field setup कर रहे हैं। Misbah, while they're setting that up, okay, it's pretty much set up. Then I would ask you a question about Hafiz against Warner. Misbah, Hafiz against Warner. ओवरऑल हफीज का रिकॉर्ड अच्छा है वार्नर के अगेंस्ट बट आई थिंक वी हैव टू लुक मैचअप। हमने फिंच को भी देखना दूसरी उसका तरफ। 200 का स्ट्राइक रेट Finch का against द ऑफ स्पिनर्स। Okay, so they've got a Warner field set up there. Wahab and Waqar. Take us through, guys. वो ये वैसे ही है, इसको लाइन है ना इसलिए उसको सर्कल कर दिया। ठीक है। अब इसमें नॉर्मल फील्ड जिस तरह हम शाहीन की बात कर रहे हैं, अगर शाहीन नए बॉल से कर रहा है सो ऑब्वियसली जो ये वाला फील्डर है इसको हम ख़त्म कर देंगे, एक्स्ट्रा जो हमने लिया हुआ है हम इधर एक स्लिप के साथ उसके चले जाएंगे। ठीक है। वार्नर को आप थ्रू आउट जो पहले अगर शाहीन है ही शुड कम इन एंड बोल दैट यॉर्कर जिसका ही लुक्स फॉर दैट लेंथ Right. इवन अगेंस्ट द लेफ्ट हैंड ही शुड लुक फॉर दैट क्योंकि उसका बॉल स्विंग होता है, पढ़ के सीधा भी रहता है। सो यू नो एज अ बैट्समैन इट्स वेरी डिफिकल्ट और हमने देखा जितने भी बैट्समैन आए हैं वो शाहीन को पहले कोशिश करते हैं कि वो उसको यहाँ पे ही खेले। सो दैट्स आई थिंक कि उसको बिल्कुल करना चाहिए, पहले बॉल जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल उसको आगे रख के बॉल जो है उसको शाहीन को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद अगर ये वाला जो फील्डर जो अभी हमने लिया स्लिप का, अगर वो खड़ा हो जाता है 2 ओवर्स पे, हम इसको क्या कहते हैं, सारे चला गया सॉरी, कोई मसला नहीं, रीडू कर लें। ठीक है जी, उसको उसके साथ हम कर लेते हैं। अब हम जो स्पेसिफिक लेंथ की बात करें कि उसके लिए जो लेंथ है वो किधर होनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बात करते हैं गुड लेंथ की विच इज 6 यार्ड, 4 to 6 यार्ड फुलर और 8 यार्ड। आई थिंक वी शुड बी बॉलिंग हिम राइट इन द ऑफ एंड मिडल और वी शुड बी बॉलिंग अ लिटिल बिट हेयर। ठीक है, अ लिटिल बिट टू हेयर, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, तू कह थोड़ा सा बाहर और इस एरिया में विद एन ऑफ। ये जो जगह है इसकी स्पेसिफिकली दैट इज द वन, क्योंकि आजकल फ्रंट फुट पे आए, वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आए और हमने देखा जब वो फ्रंट फुट पे आता है वो स्ट्रगल करता है। होता क्या है कि अगर आप उसको आगे बॉल करके आउट करने की कोशिश करते हैं वो एरिया आ जाता है ये कहीं पे, राइट वो स्लॉग उसके एरिया में अगर स्विंग भी हो रहा है बॉल या कुछ भी हो रहा है, वो क्या करता है, क्योंकि बैट्समैन टेंड्स टू स्टे ऑन द बैक फुट दीस डेज, सो वो क्या करता है कि यहाँ पे फिर उसको पहले जोर से मारने जाते थे, अब जोर से नहीं मारते, अब बैट्समैन जो है वो यहाँ पे वेट करके उसको बस टाइम करते हैं। नाइस, बिल्कुल उसको टाइम करता है कि अच्छा बॉल पेस से आ रहा है तो उसको बैक फुट पे रहकर एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे विकी ने उसको एक्सप्लेन किया हमें कि अपना फ्रंट लेग वो साइड पे लेके एग्जैक्टली वो ऐसे करेगा, तो आप क्या करोगे उसको बॉलिंग फिर? लेकिन वसीम भाई उसको यहाँ से जिस इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली इस जगह की लेंथ से, आई विल मेक हिम टू कम प्ले देयर, बिकॉज यहाँ से अगर वो इस तरह मारने जाएगा, जो कि उसने मुझे 1-2 दफ़ा ट्राई किया है, अगर मैं उसे बॉलिंग करूँ, वो इधर से जब मारने जाता है तो वो बोल्ड भी होता है
ठीक है। और ऐसे में टॉप एज होने के भी चांसेस है कि टॉप एज वगैरह भी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यही आ जाए फिंच के ऊपर। जी सॉरी वकार। वाबी, यू थिंक कि वो अर्ली ऑन शाहीन को इस तरफ मारने जाएगा? देखिए, मैं यही बात करूं क्योंकि वो पहला ओवर शाहीन का बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। It also sets the tone for the Pakistan bowling lineup. And you also think कि उसको पहला गेंद यॉर्कर करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि उसको पहले 2 बॉल बिल्कुल आगे करने चाहिए, बिकॉज उसमें चांस है कि वो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी टांग खोलता भी है विकी भाई, आपका बॉल अंदर से बाहर निकलता है, आउट स्विंग हो जाता है आगे से या इन स्विंग हो जाता है, अगर वो गैप तो क्रिएट हो गया ना जब वो टांग खोलेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली वो पहले ओवर में ये कोशिश करेगा कि वो शाहीन को यहाँ पे ही खेले। राइट, he will not be opening his leg. लेकिन वाबी, he will be thinking about it. He knows कि शाहीन ने यहीं आना है, इसी एरिया में। He knows that, ठीक है ना? लेकिन still he has to execute his plan. So why not to bowl this length to begin with? क्योंकि पिच के ऊपर से अगर कुछ गेंद ने डिविएट, इस लेंथ को कि अगर पिच से डिविएट हुआ, एंड इफ ही इज एक्सपेक्टिंग द बॉल टू बी हियर कि जी बिल्कुल यॉर्कर करने के लिए तैयार खड़ा है, बैर उसका बैकफुट पे उसका वेट है, क्योंकि वो सोच रहा इधर आएगा तो मैं इसको सिर्फ पंच करूंगा, मैं जो कह रहा हूँ ना टाइम करूंगा। तो व्हाट अबाउट कि अगर वो वहां फेंकता है पहला गेंद, देन ही हैज टू पुश फॉर इट। बिल्कुल, That's what I believe. वकार भाई यही बात है कि अगर देखे एज अ बैट्समैन, ये एज अ बॉलर सबसे पहले तो ये शाहीन पे डिपेंड करेगा कि वो ये देखेगा कि जब उसने बॉल आगे पिच किया है तो क्या उसको स्विंग मिला है या उसको स्विंग नहीं मिला, या बॉल कितना स्विंग हो रहा है। लेकिन क्योंकि वेरी फर्स्ट बॉल होता है या फर्स्ट 2 बॉल्स ऑफ द गेम होते हैं, तो बैट्समैन भी जो है वो थोड़ा सा नर्वस होता है। राइट, ही हैज दोज नर्व्स। सो पहली 1-2 बॉलें बहुत जरूरी है। अगर शाहीन को ये फील हो कि यार हाँ उधर से बॉल स्विंग नहीं हो रहा, बॉल कुछ नहीं हो रहा, ही शुड स्ट्रेट अवे कम ऑन टू दीज लेंथ्स। उसकी वजह यह है कि फिर देन ही हैज टू कम फॉरवर्ड। ओके, सो फर्स्ट 2 बॉल इज ऑलवेज अ चांस टू। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि अगर आप उठा के देखें ना कि शाहीन की बॉलिंग, वी माइट हैव द विजुअल्स आल्सो, कि जो शाहीन की बॉलिंग अगेंस्ट इंडिया है, उसने एक यॉर्कर किया है जो अपना राहुल को, जो रोहित शर्मा को उसने एक यॉर्कर किया है। अदरवाइज उसने लेंथ पे बॉल किए हैं, जो कि एवरी बॉल इट सीम कि इट्स गोना ट्रबल। एग्जैक्टली, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आप अगर इसकी पहला ओवर शाहीन का निकाले इंडिया के अगेंस्ट, आप देखेंगे सबसे अच्छी चीज। So sorry guys, you have to remain right there. We are going to show everything, but we're going to take a break and we have to move from Warner to Finch. So stay there on the break, only for 25 minutes. I'm joking, it's not a 25-minute break. Aap dekh rahe hain The Pavilion. We'll be right back after these messages. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome back to The Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, एंड इट इज द बिग डे. इट इज द सेकंड सेमीफाइनल, Pakistan versus Australia. With me, legends and stars of the game. I've got Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah Haq, and Wahab Riaz, and I've got Wahab and Waqar over there. हम बात कर रहे थे how to tackle Finch and how to tackle Warner. Carry on, guys. सही, तो हम शाहीन की बात कर रहे थे कि इंडिया के अगेंस्ट उसने क्या अच्छा किया, उसने कैसे डिसीव किया रोहित शर्मा को। अगर आप उसके पहले 2 बॉल देखें, क्योंकि केएल राहुल खेल रहा था और सबको पता था कि शाहीन आके पहला यॉर्कर करेगा, पर शाहीन ने उसको डिसीव ये किया कि पहली 2 बॉलें लेंथ बॉलें की, और उसके बाद जैसे ही रोहित आया तो रोहित को उसने जेन में ये डाला कि ही माइट नॉट गो फॉर द यॉर्कर, और अचानक जो यॉर्कर आया है वो उसने मिस किया है। और उसके बाद भी आप अगर देखें तो उसने केएल राहुल को कोई यॉर्कर करने नहीं गया। आप ये देखिएगा, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं शाहीन के पहला ओवर। लेट्स टेक अ लुक। वकार, अगर आप ये देखें ये चीज़, अब फिंच जो है वो एक ऐसा बैट्समैन है जिसको जो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि शाहीन, क्योंकि फिंच अंदर वाले गेंद पे फंसता है, जिसकी अभी डेमोन्स्ट्रेशन वकार भाई करके दिखाएंगे, वो ये सोच रहा होगा कि हाँ अगर पहला बॉल इसको यॉर्कर किया सो ही माइट ट्राई टू बॉल मी अ यॉर्कर एज वेल। और सबसे ज़्यादा जो प्लेयर आउट होता है वो है एरन फिंच अंदर वाले बॉल पे, एंड दैट फ्रॉम वेयर दैट लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वकार भाई प्लीज़। नो, वेरी सिंपल। आई मीन मेरा मानना है, क्योंकि मैंने शाहीन के साथ काम भी बहुत किया है, सो आई फील कि जब शाहीन व्हेन ही हिट्स द लेंथ राइट इज द मोस्ट डेंजरस What are the bowler right in the world. lengths, Vicky? Right length means कि जो इसने गेंद राहुल को किया था, that's the length. Okay. Just need to be a little bit fuller, most likely around about
ये बेसिकली होता क्या है कि दिस इज द लाइन ऑफ द स्टंप्स ना, बेसिकली ये लाइन ऑफ द स्टंप्स होती है ना बेसिकली। ब्लैक कर दूं? नहीं ठीक है, ये लाइन ऑफ द स्टंप्स होती है जो आजकल DRS में भी दिखाते हैं कि जो मैट बिछाया जाता है। सो दिस इज द लाइन ऑफ द स्टंप्स। LBW भी तभी होगा कि अगर शाहीन का बॉल विकेटों की इसके कहीं पे भी इसके बीच में पिच होता है। सो आइडियली लिटिल बिट फुलर बट नॉट टू फुल। नो आई वुडंट सजेस्ट कि उसको बिल्कुल ही मुंह में करने की कोशिश करे। वो इसलिए कि ऑस्ट्रेलियंस दे हैव डन देयर होमवर्क, दे नो व्हाट शाहीन डज। सो उसको डिसीव करने के लिए आई फील, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, माइट बी रॉन्ग, कि फिंच अक्रॉस नहीं जाएगा। शाहीन को मालूम है फिंच को will probably look to save his legs। वो लेग स्टंप या लेग स्टंप के हो सकता है बाहर खड़ा हो। आप आज देखेंगे कि he might be standing a little bit this, कि इस तरफ को मैं अंदर आते पैड को ना लगे, अगर लगे भी तो मैं बाहर हो गेंद, बीच में नहीं लाएगा वो। लेकिन अगर शाहीन अक्लमंद होगा, शाहीन उसी लेंथ से बॉल करे। और वसीम भाई यू नो बेटर कि लेफ्ट आर्म सीमर्स की नेचुरल वेरिएशंस भी होती हैं। वो कई दफा बॉल आता है ऐसा पढ़ के और सीधा निकल जाता है। एंड दैट्स वेयर आई फील शाहीन शुड बैंक ऑन, कि अगर शाहीन उस लेंथ पे बॉल करेगा और अगर उसने पीछे खड़ा और वो सोच रहा है कि मैं पैडों पे नहीं खाना, देयर इज एवरी चांस दैट ही विल nick through. So Waqar Wahab, you've all been talking about Shaheen. Shaheen is not going to be bowling from both ends. No, of course not. So what I'm saying, thank you Waseem. What I'm saying is कि अगर फर्ज करें कि वो शाहीन के अगेंस्ट बिल्कुल एक डिफेंसिव पॉलिसी के ऊपर चले जाते हैं, व्हाट डज द पाकिस्तानी थिंक टैंक थिंक, कौन दूसरे एंड से ऑपरेट करेगा और क्या अटैक होगा? आई थिंक इमाद इज ऑल्सो अटैकिंग ऑप्शन, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है ना। उसको भी ये करना पड़ेगा कि उसको भी सेम करना पड़ेगा कि विकेटों के अंदर फिनिश करे, स्पेशली राइट हैंडर फिंच को विकेटों के अंदर फिनिश करे, क्योंकि राइट हैंड पे इस टूर्नामेंट में देखा है कि वो स्ट्रगल किया उसने। फिंच आउट हुआ है अगेंस्ट I think it was against West Indies. Right. Against West Indies, if I remember it correctly, if we've got that ball, we can show that वो exactly उसी तरीके का बॉल है। आउट हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, look at that. No, that is against the pacer, the spinner I'm talking about, जो उसने स्पेशली I think Hussain was the bowler। ये एक और इनकी विकेट है, ये किस तरह, एक तो ये देखें, this is Finch trying to make room and going in the अगला भी इनका दिखा दें। I think हम बात कोई और कर रहे हैं। ये this is what I'm talking about। Watch this. This is what इमाद also do। ठीक है ना, इमाद का भी बॉल इसी तरीके से, watch this, इसी तरह का आप देखेंगे कि इमाद भी बॉलिंग करता है, तो जो ही बॉल अंदर आता है he gets cramp, he likes to cut shot खेलना चाहता है, लेकिन अगर बॉल अंदर आ रहा है he does struggle। Right. And this was against the leg spinner Shadab। Also do not forget कि जो सीरीज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ दुबई में खेली थी, जो 3-0 पाकिस्तान जीता था, उसमें इमाद ने 2 से 3 बार आउट किया था उस अंदर वाले बॉल पे ही। अब मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा वकार भाई कि आप थोड़ा सा जो है वो मैक्सवेल पे, क्योंकि जब फील्ड खुल जाती है, मैक्सवेल आएगा, स्मिथ आएगा, उन दोनों बैट्समैन के लिए आप क्या फील्ड सजेस्ट करेंगे? So assume कि मैक्सवेल walked into bat, I hope कि in second over, it means they are 2 down, but 6 के बाद आता है तो क्या फील्ड सेट होगी अगेंस्ट से फॉर आइडियल से हसन अली? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स होप के पहले दोनों ओपनर्स ही पहले 6 ओवरों में आउट हो जाएं। आई थिंक वंस दे, अगर हम पहले अर्ली विकेट्स ले लेते हैं, आई थिंक मैक्सवेल बिकम अ लिटिल बिट ईजियर फॉर एवरीवन, ऑल द बॉलर्स, दे विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, दे स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट देम। लेकिन अगर नहीं गिरती है मैक्सवेल, आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम, स्पेशली हमारे जो बीच के ओवर हैं जिसमें शादाब ने आना है, हसन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। आई फील कि हसन को अपने जो स्लोअर वन है, जो हमने उस दिन भी बात की थी, ही इज गॉट टू यूज दोज मोर। He doesn't, you don't want to give them pace because he likes slashing the ball, he likes to play that shot, and then of course spinner को वो he like, spinner पे is very hard on the spinner। थोड़ा सा फील्डिंग सिनेरियो सेट कर दे स्मिथ और उससे मैक्सवेल के लिए प्लीज। ऑलरेडी सेट है, एक टाइम पे एक का ना कर लें, जिसका आपका दिल करे। मैक्सवेल का मैं सिंपल रखूंगा कि अगर आता है तो just keep it simple and look to aim at the stumps from the right length। जिस उसका अगर हसन आता है, हसन का बॉल अंदर आ रहा है या वो एंगल बनाता है अंदर को, तो he's got to hit the back of the length and try to scramp him for room, let him play that shot। वो खेलता है ये भी शॉट, बट इस स्लो पिच पर there is every chance कि बॉल हवा में जा सकता है। अगर पिच बहुत अच्छा ना हुआ, अगर थोड़ा सा फंस रहा हुआ बॉल, I have a feeling कि he will struggle, he got to have a fielder
बैक हेयर जो आपका जो होता है क्या नाम है बैक स्क्वायर लेग होएगा, एक ऑफ कोर्स नॉर्मल फील्ड है वहाँ अगर तो मैक्सवेल सेट हो गया तो यू कैन ब्रिंग द थर्ड मैन इन, ये दो फील्डर यहाँ आ जाते हैं एंड देन यू गॉट अ फील्डर हेयर, ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स मिड ऑफ ऊपर आएगी, मिड ऑन पीछे जाएगी, ठीक है, एक फील्डर अदर आ जाएगा, एक फील्डर इधर होएगा। वो आप कितने फील्डर हो गए? एक बंदा फील्डर अपने तू अपने रखी जा फिर फील्डर। नहीं यार आपके वो सिर्फ डार्क कर नजर नहीं आ रहा टीवी पे, सो यू हैव टू मेक इट डार्कर। Yeah. There you go. 5 यहाँ पे हैं, और एक मिड विकेट होगी, 6 डीप मिड विकेट होगी, 7 8 9 दैट इज द फील्ड प्लान। This is So against that is what the field should be so for third Maxwell. man up. Yeah, third man up. थर्ड मैन ऊपर होगा तो पीछे कौन सा Because लेके अगर जाएगा? आप अगर आप स्लोअर वन भी करते हैं ना, Yeah. so then you can bowl those slower one. आप फील्डर कौन सा ये मिड ऑफ पीछे लेके जाएंगे? You can push mid off पीछे, और अगर आपको समझ आ रही है कि अगर बॉल अंदर को आ रहा है तो you can push that one also back, either one of them, depending on कि वो कितना सेट खेल रहा है. So these are the things you need to do. Okay. All right. Good. Interesting right. discussion Done. there. Misbah, let's go to you with that. What kind of strategy? ये तो हमने देख लिया है. But now suppose कि we do make inroads in the beginning part of the power play. और हम ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज कर देते हैं. Then you've got शादाब there, you've got Haris Rauf there. What kind of an approach would these guys have to deploy against the Australian middle order? देखें, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये हो जाएगा अगर आप अर्ली विकेट्स ले लेते हैं, मैक्सवेल जल्दी आ जाता है तो उसके अगेंस्ट जैसे इन्होंने बात की कि नॉर्मल लेंथ सेट करनी है अर्ली ऑन, उसको मुश्किल होगी. उसके अलावा जितने बैट्समैन हैं, मिच मार्श की अगर बात करें तो उसका रिकॉर्ड अगेंस्ट लेग स्पिन अच्छा नहीं है. इवन अगर इमाद भी आएगा तो ही विल बी वेरी इफेक्टिव. 13 की एवरेज है उसकी, 4-5 दफ़ा वो आउट हुआ है. इसी तरह के स्टोनिस को हमने देखा है कि वो लेग स्पिन के अगेंस्ट वो गुगली नहीं पिक होती उससे. सो शादाब विल बी लीथल अगेंस्ट दैम वंस दी स्टॉप ऑर्डर जो उनके ये बहुत ख़तरनाक हैं ऊपर के 2-3 बैट्समैन. तो आई थिंक थोड़ा स्मार्टली यूज़ भी करना पड़ेगा बाबर को, शादाब को. मैचअप्स का होप कि उनको पता होगा ये सारी चीज़ें, ऑब्वियसली एनालिस्ट आपको दे देते हैं जी. बहुत बड़ा एडवांटेज होगा पाकिस्तान को. फर्स्ट 6 ओवर्स अगर हमने 2 आउट कर लिए, आई थिंक देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप. उनको मुश्किलात होंगी और पाकिस्तान को एक बड़ा एज मिलेगा. वसीम, मुझे ये बताएं, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे खेल हुए, दे लाइक द बॉल टू कम ऑन टू द बैट, दे लाइक पेस उसको मारने के लिए, नॉट दैट. सो डज दिस कम डाउन टू द पाकिस्तानी स्पिनर्स टू कंटेन द ऑजी बैटिंग? ये जो एक माइंडसेट था कि ऑस्ट्रेलियंस इन विकेटों पे अच्छा नहीं खेलते, प्रॉब्ली 20 years ago maybe, 25 years ago maybe, but now they've been playing IPL for last I don't know how many years, 10 years, yes. So spending 2 months and then a lot of series happening against India in India, तो इनको इन विकेटों का अब आइडिया हो गया हुआ है. ये अडेप्ट करते हैं अपनी गेम अकॉर्डिंग टू द पिच. और आई थिंक जितना एक्सपीरियंस है इन सबको, स्पेशली वॉन को, फिंच को, स्मिथ को, जो कि एंकर, आई थिंक स्मिथ को रखा है कि अगर 2 विकेटें गिरती हैं बजाय मैक्सवेल के, वो स्मिथ को भेजेंगे टू होल्ड द फोर्ट. So I don't think so there'll be a bother for Australians unless until it's a big turner. Normally मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने शायद थोड़ा सा देखा है कि जल्दी भी विकेटें गिरी हैं तो दे आर सेंडिंग मैक्सवेल. शायद कि हम 4 ऊपर से अटैक करेंगे, अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे 2 ही आउट हो जाते हैं जल्दी, 3 ही आउट हो जाते हैं, देन स्मिथ इज इन द मिडल के जो जाके उसको थोड़ा सा उस इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं. बट स्पिनर लगे होंगे ना तो वो उसको भेजेंगे स्मिथ को. हाँ, स्मिथ को भेजेंगे वो लोग, क्योंकि स्मिथ प्रॉब्ली स्टोइनिस को भी स्ट्रगल करता है, मैक्सवेल भी सम टाइम इन स्लो पिचेस पे ये उल्टी. मैक्सवेल जो है वो स्पिनर्स का एक दफा तया पांचा कर देता है. वो जो उन विकेटों पे है ना सिम भाई, उन विकेटों पे ये जो विकेटें थोड़ी, अगर ये विकेट थोड़ी सी भी स्लगिश हुई ना कि जब बॉल थोड़ा सा भी ग्रिप हुआ, then it is hard. विकेट से याद है पिच रिपोर्ट आई है. अभी पिच रिपोर्ट नहीं आई, but we've got the Pakistani camp here with us and we've got the professor with us. आइए सुनते हैं. The professor there, Fahad. बिल्कुल, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टीम आई वुड से. और जिस तरीके से उन्होंने बात की, आप देख रहे होंगे कि हाउ मच कॉन्फिडेंट ही इज़.
And for me, Hafiz bhai is like a panther, to be very honest, because he is somebody जो कि crucial time पे crucial situation में he come out of that thing और आते साथ he performs so well और whenever he has performed. पैंथर की खसूसियात क्या होती है बताएंगे आप? Panther is somebody जो you know आप जिस तरीके से अभी ये टूर्नामेंट जा रहा है, हम रिजवान की बात कर रहे हैं, हम बाबर की बात कर रहे हैं, हम शाहीन की बात कर रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. Panther is somebody who comes out at a time and he attacks when nobody is expecting that. And for me, he is one of those for today's game. He is a Panther. उसकी फील्डिंग इलेक्ट्रीफाइंग हो. ये ज्यादा हो गया थोड़ा. हम उनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग पे रहते हैं. मुझे ऐसे लगा जैसे इसने ना हफीज को पैंथर उसके रंग की वजह से बोला, मुझे ऐसे शक पड़ा. Allah Akbar. Okay, with that I'm going to definitely take a break on the pavilion. When we come back, there's more talk. You're watching A Sports and 10 Sports. You naughty, naughty, naughty. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फकरान आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup और आज है बड़ा मुकाबला. सेमीफाइनल नंबर 2 पाकिस्तान आएगा आमने सामने ऑस्ट्रेलिया के. आइए जरा नजर डालते हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर. There you have it, the Shaheens all set for the big game, the semi-final against Australia. With me in the pavilion, the legends, the superstars, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. बहुत सारी बातें हैं अभी तो और भी करने की, लेकिन कुछ और बातें भी बीच में आ गई हैं वसीम. वो एक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि आज आपके घर के अंदर डोमेस्टिक सूरत हाल किस नौयत की है, क्योंकि आप पाकिस्तान के और वो है. एक मैच आइडेंट भी सोशल मीडिया पे जो है वो चल रहा है. ये देखें दोस्तों, आज बहुत बड़ा मुकाबला है. ये है मुकाबला पाकिस्तान बामुकाबला भाभी. ये है सूरत हाल. We both on the same side, but yeah, I've told my wife that you should be Switzerland. Switzerland, neutral. Neutral kind of thing. And I obviously will support Pakistan, and because I'm from Pakistan, I want Pakistan to win. मगर उसका exact जो मेरी आज बात हुई है उससे before the show, before she was going to bed, she said 1 बजे वो उठेगी रात के, मैच देखेगी अपने डैड के साथ, and she wants Pakistan to win. Because she wants to see. आप उनको स्विट्जरलैंड का क्यों बना रहे हैं? Neutral, but she doesn't want to. She said कि नहीं. She said कि I want Pakistan to win. I want to see 200 million people smiling, you know, little that smirk and smile for the next couple of years. Couple of years का नहीं है, but for a couple of minutes, if they look at us right now, they'll all be smiling. They'll be laughing at us. Actually, you know, we've got such a spectacular. आइए नजर डालते हैं दोस्तों दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पिच और मौसम की सूरत हाल पर. वसीम, पिच कुछ समझ आई? पिच दिखाई नहीं उन्होंने. They haven't showed the pitch. दो चीजें से लेंस बताते रहे हमें कि इस लेंस पे समझ आई हैं. जो सैन ने कहा है कि इस पे ग्रास नहीं है, बहुत कम है, वो भी रोड लेना और हार्ड है. So my request to ICC is, can you show the pitch for the pitch report? What? आपने बड़ी दफा की पहले. आपकी कोई नहीं सुन रहा है. ये क्लिप निकाल के मुझे have to put it on social media and tag ICC and ask them किस जीनियस का ये आइडिया था कि पिच रिपोर्ट पे पिच ना दिखाओ. गज ने बता दो इधर. अब हमारा अपना ड्रोन तो शुक्र है पहुंच गया था. जरा नजर डाल लेते हैं, हम ही कुछ अंदाजा लगा लें यहाँ से. ये रहा ड्रोन शॉट जी दोस्तों. Looks dry, looks good from here. It doesn't look crumbly to me from here, but it looks definitely dry. And I think थोड़ी सी जब ओस पड़ेगी अच्छी बैटिंग पिच हो जाएगी मेरे ख्याल में. मिसबा can tell better. These guys have played. Wahab, you played here. आप बताएं, मिसबा बताएं. मिसबा ये ना कह रही, मिसबा ये ना कह दे कि कहाँ बड़ा. मुझे तो ये विकेट अच्छा लग रहा है. There will be some bounce in this wicket as well. Roll बहुत अच्छा हुआ है and we can see a little bit of cracks as well. So I think it will remain the same first innings, second innings until unless थोड़ी सी ड्यू जो है वो ड्यू फैक्टर जो है इसको थोड़ा सा चेंज करे. Other than that, I think it will remain the same and it will be good for batting. That's a very safe pitch report, huh? That's a responsible way. He's already becoming a seasoned कराची broadcaster. स्टूडियोज बैठ के आप इससे बेहतर पिच रिपोर्ट नहीं दे सकते. मतलब अगर what would be an unsafe pitch report, Waqar? If this was a safe pitch report, what would be an unsafe pitch report? Unsafe होती है कि जी जैसे घास नजर आ रहा था, ये इस पे सीम होएगा,
इस पे ये होगा, और ना होगा तो फिर मुद्दा आप पे पड़ेगा, ठीक है ना. दिस इज अनसेफ, दिस इज यू नो स्टिकिंग योर नेक आउट, इसको बोलते हैं. सो दिस वुड हैव बीन, बट अच्छा पिच लग रहा है. अच्छा पिच लग रहा है. चले, ये बात तो अच्छी है. Misbah, what kind of target would you like to set up if you get to bat would like first? to take a break, I suppose. ब्रेक का वक्त है पर देखिए टारगेट मैं आपके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, अभी थोड़ी देर और बैठने हैं. कोई मसला नहीं. हौसला रखें. ब्रेक टाइम. हम लोग जहाँ 10 पे 3 पे रोकना पड़ जाए तो वहाँ आपको रुकना ही पड़ता है. Absolutely. प्रेसिडेंट साहब ने क्या कह सकता हूँ. अगर आपने सर लेनी है ब्रेक, जल्दी ले लो, फिर टॉस में ना. पहले मैं नहीं लेनी ब्रेक, इन्होंने ब्रेक लेनी है. इमरजेंसी उनकी हुई है, मेरी नहीं हुई. देखें एवरेज स्कोर जो आप स्कोर की बात कर रहे हैं वो 150 ही है यहाँ पे. और अगर पाकिस्तान ने ड्यू फैक्टर, अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो इट्स अ बोनस. एनीथिंग अबव 160 प्लस या 170 के पास आप जाते हैं तो दैट्स अ बोनस. इन अबू धाबी 166 काइंड ऑफ आराम से ही कर गए थे इन द एंड वो. अबू धाबी इज स्लाइटली डिफरेंट और स्पेशली जिस किस्म की दोनों बॉलिंग लाइनअप्स थी. अबू धाबी बहुत अच्छा गेंद आता है, उस तरह दुबई में थोड़ा बहुत स्पिनर का गेंद होता है तो थोड़ा फंसता है. कटर्स इवन बॉलिंग सेकंड यू थिंक? बॉलिंग सेकंड में थोड़ा कम हो जाएगा. यही एक डिसएडवांटेज है आपको बॉलिंग सेकंड. बट स्टिल आई थिंक इट्स नॉट ट्रू लाइक दैट जैसे वहाँ पे होता है कि बिल्कुल स्लाइड करता है बॉल. यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलता है. एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि ड्राई अगर रहती है आउटफील्ड तो देन आई थिंक स्पिनर्स भी और कटर्स भी आपके जो है वो फर्स्ट इनिंग तो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं. सेकंड इनिंग में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो इफेक्ट वो बैट्समैन के अगेंस्ट जाता है अगर ड्यू उस तरीके से ना पड़े तो. ऑलराइट दोस्तों, हम इस वक्त लेंगे एक वक्फा जो कि बहुत ही लाजिम है इस वक्त. तो आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. Welcome back to the pavilion. The Aussie team there looking really good. It's going to be a great game of cricket today. The semi-final, Pakistan बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया. अब से कुछ देर पहले हमने आपको पिच रिपोर्ट और मौसम की सूरत हाल जो थी वो दिखाई थी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से. इस वक्त मेरे साथ पवेलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक एंड वहाब रियाज. वकार, पिछले मैच में शुएब मलिक ने एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली. 50 रन उन्होंने निस्फ सेंचुरी गाड़ी है 18 गेंदों के ऊपर. और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है उनका. 4 T20s के अंदर चारों दफा नॉट आउट गए हैं. ही वुड बी क्वाइट अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर फॉर अस टुडे. वेरी इंपॉर्टेंट रोल ही हैज. मलिक की फॉर्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल फॉर पाकिस्तान. और अच्छा है कि 50 रन किए, एक कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, यू नो टीम से बाहर रहे हैं, वापस आ रहे हैं. सो आई थिंक ही विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दिस गेम एंड टू बाबर आजम आल्सो. डोंट फॉरगेट, you know, his bat is talking. He's got a very free flowing strokes in his and not only the spinners, he has also enjoyed batting against the pacers also, क्योंकि आज match you know mainly the pacers against the Pakistani batting. So I've got a good feeling for Shoaib Malik. He's always been you know top professional, very fit at this age and really going strong. So I'm hoping and I'm praying that he will do goods for Pakistan. And good, you mentioned the paces against Pakistani batsmen. Yeah. Is World Cup में Wasim highest strike rate against pace attack? The two top scorers, the two highest strike rates. One is Mohammad Asif and the other one is Hafiz. यहाँ एक का 283 का है आसिफ का और हफीज का 221 का है. But again, this is different league altogether. League bowlers, fast altogether, bowlers, these yes. three bowlers, they all three of them, in fact, most Cummins और वो जो है दूसरा Stark, they're 145 plus. Hazelwood is around 140, Shanice tall. और सबसे मुश्किल मुझे वो लगता है Hazelwood, because उसकी लेंथ जो है वो आके वो सीम मारता है, वहीं से बॉल अंदर आता है, वहीं से बॉल बाहर जाता है. And he's being a tall guy, he generates extra bounce. तो ये चीज़ें हमें प्लान करनी पड़ेंगी. बट वी हैवंट, ये तो बात कर ली हमने रन रेट की. बट आई थिंक एक जो प्लेयर बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, उसका जिक्र हमने कम किया हुआ है, इमाद वसीम जी. उसने अभी तक वर्ल्ड कप में जहां बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग की और चीते की तरह फील्ड की है.
he's been really good. उसको अब कैसे यूज करना है? नए गेंद से पहले ओवर कराएंगे, क्या करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? हमने दिखाया कि जजाई को उसने आउट किया नए गेंद से, क्रॉस मारने गया. व्हाई यू लाफिंग वहाब? ही इज अ टाइगर वसीम भाई, चीता है वो. इतना आसान नहीं है कि नए बॉल के साथ आप आएँ और आते साथ आप बॉलिंग करें और अटैक करें. ही इज़ द मोस्ट अटैकिंग ऑप्शन पाकिस्तान हैव. आप देखें रेगुलरली जितने भी मैचेस हुए उसमें अभी तक उसने बॉलिंग किया. ही टेक्स दैट चैलेंज एंड दैट्स व्हाट यू रियली रिक्वायर फ्रॉम योर प्लेयर्स. आप लोग कर क्या रहे हैं? किसी को पैंथर बना रहे हैं, किसी को टाइगर बना रहे हैं. में हो रहा भाई, जंगल में नहीं हो रहा. मिसबा ने ऊपर से जुड़ रहा है. ये चीता और टाइगर कहाँ आप लोग शुरू हो गए? पैंथर के ऊपर जंगल में थोड़ी हो रहा है, मैच स्टेडियम में हो रहा है. This is how you got out. That's the way to give confidence to your players. Yeah. Exactly. There you go. I think he's bowling very well. There you go. So this is the line we were talking about, कि go cross the left hander early on if he bowls. जी. इमाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पेशली जज़ई या बाकी लेफ्ट हैंडर डिफरेंट है. वार्नर अभी लेग साइडिश खड़ा होके वो इमाद को जानता है. ऑफ साइड पे मिड ऑफ के ऊपर से, कवर के ऊपर से अगर शॉट होगी तो कट मारेगा. तो ये उसको थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए इमाद को. अदरवाइज आई थिंक अगेंस्ट फिंच बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इमाद का. जो देखा हमने भी आगे दिखाया भी जो था कि जब वो इधर से बॉल आता है जो Okay guys, I'm going to have to stop you here because we have to take you directly to the Dubai International Cricket Stadium where both the captains are ready for a toss. Well, there you have it, the news out of the ring of fire. Australia have won the toss and have elected to field first. इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करके टारगेट सेट करना होगा. मिसबा, पिच आपने देख लिया, सूरत हाल आपके सामने है. अब ये टारगेट का मामला है. What is a good target that can be defended here? देखें, आपको असेस करना है पिच को और आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करना है अपने. 6 ओवर पहले आपने जाते ही 1-2 ओवर खेलना है, देखना है पिच कैसी है. नॉर्मल खेलें. अगर तो पिच आपको लगता है कि ये 170 प्लस हमने करना है यहाँ पे, तो देन यू हैव टू जस्ट प्लान दैट. 6 ओवर, फिर 6 से आगे आपने 10 ओवर तक देखना है, 10 से 15, 15 से 20. एकदम अगर आप जाते ही बैटिंग में ये सोचते हैं कि हमने 170-80 करना है, you put yourself under pressure. So I think it's very important phase by phase कैसे आपने चलना है. अच्छी पार्टनरशिप, ओपनिंग, then in the middle damage them और एंड पे आप उसको फिर मैक्सिमाइज करते हैं. मिनिमम आपको 160-165 सोचना है. वहाब, आपने कल एक चीज़ पॉइंट आउट की थी जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सेमीफाइनल था कि इतना ज़्यादा ड्यू फैक्टर नहीं था. गालिबन उन्होंने बहुत ज़्यादा स्प्रे किया हुआ था, आउटफील्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ था. क्या हम उसी तरह का सूरत हाल की तरफ आज देख सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम. दिस इज़ द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप और आई थिंक कि आईसीसी ने उसको अच्छे तरीके से स्प्रे करवाया होगा बिकॉज इट इज़ एन एडिशनल एडवांटेज टू द टीम बॉलिंग फर्स्ट. सो मैच जो है वो इक्वल होना चाहिए, बोथ द टीम्स, इक्वल फॉर बोथ द टीम्स. थोड़ा बहुत वी कैन एक्सपेक्ट बट इतना नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को सेकंड बॉलिंग करते हुए डिसएडवांटेज हो. टीम्स के ऊपर सॉरी क्विक वन बिफोर वी गो टू टीम्स. अब जैसे ये बॉल है, ये क्लोजअप करना जरा. अब हम जब गीले गेंद की बात करते हैं, ये नहीं कहते कि बिल्कुल नुचड़ जाता है. इसका मतलब है कि जो सीम है ये धागा है. हाँ. इसको एक दफा हल्का सा भी पानी या ड्यू लग जाती है तो ये गीला हो जाता है. जब ये गीला हो जाता है, ये वाली सीम, तो इसके बाद ये ड्राई नहीं होता. ये साइडें ड्राई हो जाती हैं बट ये ड्राई नहीं होता. इसीलिए स्विंग और सीम नहीं होता जब बॉल थोड़ा सा भी गीला हो जाता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. टीमों के ऊपर नजर डाल लेते हैं. सबसे पहले पाकिस्तान की टीम है. वसीम, यू कैन टेक अस थ्रू दिस अनचेंज्ड टीम. Yeah, it's the same side. Babar Rizwan, lot depends on them how the opening. But so far they have been consistent and excellent in this T20 World Cup as openers. Then Zaman need to come up with some goods. Hafiz is in good nick. Malik, we've seen fastest 15 on 18 deliveries. Asif again in a very good form, 2 big finishes. And then we have Imad, Shadab, 3 all-rounders. In fact, I consider Hassan as an all-rounder as well. And then we bat deep. Afridi 10 and 11. It's a good. A balance squad with 5 regular bowlers and 2 you have Hafiz and Shoaib Malik can give you a couple of overs as an off spinners. आइए ऑस्ट्रेलिया की टीम पे नजर डालते हैं. वकार, टेक अस थ्रू. लोग आई थिंक पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक डिफेंड कर सकता है. कोई टारगेट अगर अच्छा सेट कर दिया ना. नो डाउट ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी तगड़ी टीम है. उनके ऊपर के दोनों ओपनर्स फिंच और वार्नर दोनों अच्छी फॉर्म में हैं. मार्श ने भी पिछले मैच में सिर्फ मैक्सवेल, स्मिथ एंड स्टोइनिस इन्होंने रन्स नहीं किए हुए. सो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जल्दी से इन तक पहुंचें. ऊपर की विकेटें क्रूशल हैं, पावर प्ले इंपॉर्टेंट है. गेट इनटू दोज लास्ट 3 बैट्समैन
and I think things will become easier. Wade also a very dangerous batsman, wicketkeeper, and then of course there's Zampa and 3 fast bowlers. I mean, a very balanced side and an informed side. Pakistan को अपनी से ज़्यादा बेहतर खेलना पड़ेगा. You know, out of your skin जिसको बोलते हैं, उससे खेलना पड़ेगा to beat the Saudi side. मिसबा, बॉडी लैंग्वेज क्रिटिकल टॉस के ऊपर थोड़ी नर्वस एनर्जी नजर आ रही थी बाबर आजम में. आई थिंक नर्वस तो हम सब हैं. आज जब से आए हैं इतना बड़ा गेम होता है तो अनलेस बल्कि जब तक आप मिडिल में नहीं जाते, 1-2 बॉलें नहीं खेल लेते, वो जो बटरफ्लाइज हैं वो ऐसे मैच में वो ज़्यादा होती हैं. आई थिंक इट विल बी इम्पोर्टेंट कि जब मैच शुरू होगा तो कैसे पाकिस्तान इसको स्टार्ट करता है. एंड स्टार्ट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ टीम्स, क्योंकि ऐसे मैचों में इतना प्रेशर होता है, जो पहला पंच मार देता है उसके बाद दूसरी टीम के लिए रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है. तो पाकिस्तान के लिए स्टार्ट विल बी मैसिव. Wahab, what would be that first punch for Pakistan today? देखिए, there is nothing to panic. ठीक है, टीमें जीती हैं, पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करके टीमें जो है वो मोस्टली जो है वो हारी हैं, लेकिन पाकिस्तान हैज़ दैट कैपेबिलिटी. ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ और जस्ट प्ले द वे यू गाइज नो हाउ टू प्ले. Keep that thing going और inshallah Pakistan will win from there. Last words from you, Wasim, to the team. I know they're not listening, but maybe to everybody else. Yeah, I said it before the show. We're all very proud of you. You won our hearts already. What doesn't matter the outcome tonight. Just go out, enjoy it, and you know, full house stadium. The whole country is watching you, and Pakistan is living abroad watching you as well live. So, guys, all the best. All the best. With that, we're going to take you into the action. याद रहे कि पाकिस्तान टीम का सफर यहाँ जो था बड़ा मुश्किल था. बहुत सी चीजें आपके अगेंस्ट स्टैक थी, लेकिन आज हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं. We are going to see you on the other side of the semi-final.